So dear students, in the last class we were discussing regarding the armature winding. Okay, so armature winding के वजह से एक मॉडिफिकेशन आएगा EMF इक्वेशन में, and that modification is denoted to be your winding factor, and winding factor is nothing but your Kw, which is nothing but your, it is the combined effect of pitch factor and distribution factor. Okay, so two different terms are there. One is due to pitching. Pitching means yesterday already I discussed. What is pitching? Pitching means फुल पिचिंग, शॉर्ट पिचिंग. तो शॉर्ट पिचिंग का क्या एडवांटेजेस है और ओ हम मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड में कैसे डिनोट करेंगे, विल डिस्कस. एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहां से आया? प्रीवियसली द वाइंडिंग इन द स्लॉट्स, द वाइंडिंग इन द स्टार्टर स्लॉट्स आर concentrated one, but now it will be distributed. Distributed means every slots will be equipped with armature conductors. That is called your distributed winding. So इसका combined effect हम study करेंगे and इसका effect कहाँ पे पड़ेगा? EMF equation पे. Okay, इसका effect कहाँ पे आएगा? EMF equation पे. So first let's focus about pitch factor. Write down pitch factor. Okay, so what I told you, suppose it's a armature slots, okay, which is placed in the starter. ये सपोज मान लो आपका नॉर्थ पोल है एंड ये है आपका साउथ पोल, राइट? एंड हियर दीज आर द आर्मेचर कंडक्टर्स. 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. These are the number of conductors which is present on the north pole. 3 4 5 6. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? स्लॉट्स पर पोल क्या होगा यहाँ पे? स्लॉट्स पर पोल विल बी हाउ मच? इट वुड बी 6. सपोज दिस वन इज 7 8 9 10 11 12, right? So in case of short pitching, just a minute. So in case of short pitching, yesterday clearly I have told you what is full pitching. Full pitching means when the coil span, what is coil span? Already I told you. When the coil span is equal to pole pitch, and pole pitch का electrical degree क्या होता है, कितना होता है? That is 180 degree electrical. So when the coil span is less than 180 degree electrical, then it would be, tell me, then it would be short pitch winding. So क्या होगा यहाँ वहां पे? For short pitching 1 to 6 connect होगा, right? 2 to 7 connect होगा, right? And it will be continued, right? So यहाँ पे ठीक है, I agreed, हम इसका शॉर्ट पिचिंग कर दिए. So शॉर्ट पिचिंग मतलब क्या? मैंने क्या बताया आपको? कॉइल स्पैन डिक्रीज होगा. So कॉइल स्पैन डिक्रीज होगा, एग्रीड, लेकिन कितना डिक्रीज होगा वही जानना है, एंड उसका इफेक्ट क्या होगा वही भी आपको जानना है, राइट? सो हमको क्या करना है? कॉइल स्पैन अभी क्या होगा एंड यही कॉइल्स नया कॉइल स्पैन में इफेक्ट क्या आएगा, एंड इफेक्ट मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इफेक्ट होता है, राइट? ओके, सो अब बताओ यहां पे कितने स्लॉट्स का शॉर्ट हुआ है? पहले कितने स्लॉट? पहले क्या था? 1 to 7. सी 1 end is at 1 slot number 1, second end is at slot number 7.
But in this case, one end is at slot number 1 and other end is at slot number 6. So पहले 7 था, अभी 6 है. ठीक है, पहले 7 था, अभी 6 है. So tell me, by how many number of slots it is short pitched? So basically हम क्या बोलते हैं वाइंडिंग के लैंग्वेज में, the coil is short pitched by one number of slots. Let me write here. The coil is short pitched, इसको हम short pitched बोलते हैं ना, short pitched by one number of slot. करेक्ट, क्योंकि यहां पे पहले क्या था आपका 7 था एंड अभी क्या हो गया 1 हो गया, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 स्लॉट. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग. राइट, तो अभी हम जान गए कि कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स में शॉर्ट पिचिंग हुआ है, 1 स्लॉट का एक शॉर्ट पिचिंग फॉर्म हुआ है. ठीक है, नाउ another important thing. अच्छा, कॉइल स्पान को एंड पोल पिच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रिकल डिग्री. द पोल पिच इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. सो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इलेक्ट्रिकल डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे. बाय हाउ मच एंगल, बाय हाउ मच इलेक्ट्रिकल एंगल इट इज शॉर्ट पिच्ड. ओके, so by how much angle, this is how much slot it is short pitched. But now I am asking by how much electrical degree it is short pitched, that we have to determine. So अब बताओ, एक पोल का the angle covered by one, the angle covered by a single pole, maybe north pole, maybe south pole. The angle covered, the angle subtended by a single pole is how much? It is 180 degree electrical. Of course, it is 180 degree electrical. So my question is that angle subtended by one slot will be how much? Angle subtended by one slot will be how much? It will be 180 degree divided by slots per pole. ठीक है, 180 degree divided by slots per pole. Suppose total number of slots are S, total number of poles will be P. So slots per pole will be how much? P, S by P. Suppose एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक अल्टरनेटर का टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स है 42, नंबर ऑफ पोल्स आर 6. सपोज द नंबर ऑफ पोल्स आर 6. सो माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स विल बी देयर अंडर वन पोल. आई रिपीट, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स विल बी देयर अंडर वन पोल. So 42 slots are there under 6 pole. So one pole के अंदर कितने slots रहेंगे? 42 divided by 6. So the answer would be 7. Answer would be how much? 7. Correct? Now, so 7 slots के लिए how many degree है? How many electrical degree है? 180 degree. So one slot के लिए कितना एंगल होगा? So the angle subtended by one slot will be 180 degree divided by 7. जो भी आया इसका मैग्नीट्यूड वही होगा. All of you are getting my point? All of you are getting my point? So this is called your angle for each slot. This is called angle for each slot, which is denoted by gamma. It is 180 divided by slots per pole. Okay, all of you are getting my point?
ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ? हाँ ठीक है. सो now come to this case. In this case the coil is short pitched by one number of slot. Okay, पहले जो हम डिस्कस किया अभी ये 180 by S by P एक generalized case है. This is generalized case है, but we have taken an example. But we have taken an example which is having 6 number of slots under one pole. So what is S by P? What is slots per pole? What is S by P? So S by P in this case is how much? S by P is 6. So the angle subtended by each slot is how much? 180 divided by slots per pole which is 6. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 30 डिग्री. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 30 डिग्री. राइट? नाउ टेल मी, अच्छा यहां पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर पे, इसका अगर हम सपोज डायरेक्शन लेंगे एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ईच कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. सपोज ये है आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है. एंड आपको पता है डीसी मशीन्स में, रिमेंबर डीसी मशीन्स के बारे में थोड़ा सोचो. डीसी मशीन्स में क्या होता है? डीसी मशीन्स में क्या होता है आप जो पढ़ते हैं, इसका ऑपोजिटली ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि दिस इज अंडर साउथ पोल. आप ये पढ़ते हैं ना, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस इज द आर्मेचर कंडक्टर, राइट. एंड सपोज इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड रूल. So according to right hand rule, this is the this is the field direction, and this is the motion of the conductor, and this is the induced EMF. This induced EMF is towards this board. The induced EMF is towards this board. Okay, so towards this board. So towards this board मतलब करंट क्या होगा? Inside the board जाएगा. Okay. करंट क्या होगा? इनसाइड द बोर्ड जाएगा. इनसाइड द बोर्ड मतलब ऑब्वियसली इट इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट लोअर पोटेंशियल, तब जाके इनसाइड द बोर्ड जा रहा है. एम आई करेक्ट? सिमिलरली यहां पे क्या होगा? यहां पे सेम रूल आप अप्लाई करो. यहां पे मोशन ऑफ कंडक्टर डाउनवर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? आपके साइड होगा, टुवर्ड्स योर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन. ओके, आपका मोबाइल स्क्रीन के साइड होगा. सो इसका मीनिंग क्या होगा? ये ऑपोजिट हो गया. ये सारी चीज आप डीसी मशीन्स में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वी आर अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट हियर. सो मान लो सी ईएमएफ इंड्यूस्ड सेम ही होगा, क्योंकि फ्लक्स मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, लेंथ ऑफ कंडक्टर सेम है, सब कुछ सेम है. E इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा. B इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट. मान लो L भी कांस्टेंट ही लेते हैं, राइट, एंड V इज कांस्टेंट. सो E इक्वल टू बी एल भी साइन थीटा. सो ये आपका E है, ये आपका E है. तो अप्लाई KVL इन दिस लूप, सो इट विल बी 2E. सो नेट EMF प्रोड्यूस्ड in this coil, in this conductor is how much? 2E. In this conductor, right, in this conductor is how much? 2E, right. In this conductor, in this in this coil, two conductors means 1 ton. Okay, two conductors means 1 ton. Let me tell you another important thing. Two conductors, 1 ton. Several ton. वन कॉइल, ठीक है, इसको आप नोट करो. 2 कंडक्टर्स मीन्स 1 टन. ओके, ये है एक कंडक्टर
एंड ये है अनदर कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर 1 है, ये 2 है। ओके, सो सेवरल कंडक्टर्स, सेवरल टर्न्स अगर लेंगे लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा, एक कॉइल बन जाएगा। एक कॉइल बन जाएगा, करेक्ट। Okay, first case is gone. Now the case is when the coil is short pitched by one number of slots. Okay, one number of slot. इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट कंडक्टर 1 स्लॉट में रहेगा एंड अनदर कंडक्टर 6 स्लॉट में रहेगा। ओके, बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ शॉर्ट पिचिंग ऑफ कॉइल। सो यहां पे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट विल बी द magnitude of induced EMF, what will be the magnitude of induced EMF, tell me what will be the magnitude of induced EMF? सो अगर हम स्लॉट 1 में जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको अगर रेफरेंस लेंगे तो यहां पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, यहां पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, यहां पे ईएमएफ सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन इसका फेज डिफरेंस क्या है, यहां पे आप बताओ 180 डिग्री फेज डिफरेंस, 180 डिग्री फेज डिफरेंस। मतलब सी नॉर्थ पोल से सी नॉर्थ पोल, this slot is under north pole, this slot is under south pole, ठीक है। सो अगर आपका एक कंडक्टर नॉर्थ पोल पे है एंड अनदर कंडक्टर साउथ पोल पे है, तो वहां पे आपको फेज एंगल वहां पे आपको फेज एंगल देखना जरूरी है। सो फॉरगेट अबाउट मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू BLV, यहीं से डिसाइड होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा हर कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ EMF विल बी इंड्यूस्ड, बट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट योर फेज एंगल। सो प्रीवियसली क्या था, कंडक्टर 1 में एंड कंडक्टर 7 में फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच, 180 डिग्री, डोंट से 0 डिग्री। सी यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये ऑपोजिट है ना, ठीक है, ये ऑपोजिट है ना, तो इसको अदरवाइज हम ए से भी लिख सकते हैं। अब देखो एक मिनट इसको अच्छे ध्यान से देखो, इसको हम ए से भी लिख सकते हैं। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बट एट ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, एट ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज we have just discussed each slots having some angle, okay, each slots having some angle. So 1 to 2 पे जाओगे तो स्लॉट एंगल क्या होगा 30, 1 to 3 पे जाओगे तो स्लॉट एंगल क्या होगा 60। सिमिलरली 1 to 7 पे जाओगे तो स्लॉट एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो स्लॉट एंगल 180 डिग्री होगा, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी E एंगल 180 डिग्री। सिमिलरली यहां पे 6 में अभी क्या हुआ, शॉर्ट पिच हो गया। शॉर्ट पिच होने के बाद 6th में ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, इट विल बी E एंगल 150 डिग्री।
इट विल बी ई एंगल 150 डिग्री। अच्छा 150 क्या है यहां पे, व्हाट इज 150? 150 इज 150 is your coil span. 150 is your coil span. Beta is equal to 150 degree. So tell me another quantity, let me define you. That is your short pitch angle. मतलब कितना एंगल शॉर्ट हुआ, शॉर्ट पिच एंगल और कॉर्डिंग एंगल अल्फा which is equal to 180 minus beta, which is equal to 180 minus beta. So remember one thing, alpha is nothing but short pitched angle, which is called your short pitch angle. So in this case what will be the magnitude of alpha? It will be 180 minus beta, so it will be 30 degree. क्या होगा यहाँ पे 30 degree. Now what I told you earlier, what I told you earlier, शॉर्ट पिच एंगल में टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा इन द कॉइल, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ? सो यहां पे क्या हो जाएगा, ई एंगल 0 प्लस ई एंगल माइनस 30 डिग्री, राइट? ई एंगल 0 प्लस ई एंगल माइनस 30 डिग्री। राइट, ई एंगल माइनस 30 डिग्री। सो यहां पे टोटल ईएमएफ कैसे होगा, जस्ट अ मिनट। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होगा उसको लिखना है। सो टेल मी, अब बताओ यहां पे शॉर्ट पिच एंगल में जितना भी नेट ईएमएफ आ रहा है एंड फुल पिच में जो भी ईएमएफ आ रहा है, दोनों सेम है या अलग अलग है? डेफिनेटली दोनों अलग अलग है। व्हाई? बिकॉज दिस शॉर्ट पिचिंग एंगल, व्हाई? बिकॉज दिस शॉर्ट पिचिंग एंगल। सो शॉर्ट पिचिंग एंगल के वजह से एक फेज डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट फेज डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट फेज डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? So basically your pitch factor Kp is defined by, it is the ratio of EMF induced, it is the ratio of EMF induced in short pitch coil divided by EMF induced in your full pitched coil. So अगर इसका मैग्नीट्यूड आप अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सपोज योर शॉर्ट पिच एंगल इज अल्फा, सो EMF induced in short pitched coil will be 2E cos alpha by 2 and EMF induced in फुल पिच्ड कॉइल इज 2E। सो क्या होगा यहां पे, Kp विल बी cos अल्फा बाय 2, ठीक है? Kp विल बी cos अल्फा बाय 2, करेक्ट?
सो क्या हुआ बेसिकली, सो फुल पिस्ट में क्या लेते हैं हम लोग, दोनों ई सी, पहले क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम के टोटल नेट ईएमएफ क्या होगा E प्लस ई दैट इज 2E। सो क्या होगा बेसिकली इट इज E, it is E in first conductor which is placed in slot number 1, E in second conductor which is placed in slot number 7. Okay, so net EMF will be 2E. Correct है? Now short pitched coil. Now come to the second case which is a short pitched coil. तो शॉर्ट पिस्ड कॉइल में क्या होगा, ये है कंडक्टर 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा E है। सो फुल पिस्ड कॉइल में दोनों ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस क्या है, दोनों ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस क्या है 180 डिग्री, लेकिन जब ऐड होंगे तब फेज डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, राइट, तब क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली 0 होगा यहां पे फेज डिफरेंस जब ऐड होंगे, बट इन दिस केस शॉर्ट पिस्ट में फेज डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी योर शॉर्ट पिस्ट एंगल अल्फा, इट इज E which is at slot number 6, it is E। सो ये दोनों का रिजल्टेंट आपको बाहर निकालना है, इट विल बी 2E cos alpha by 2। ठीक है, ये तो आपको जरूर पता होगा। When two vectors having equal magnitude and angle between them is alpha, then their magnitude will be, आप पैरेललोग्राम ही अप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप पैरेललोग्राम ही अप्लाई कर दो, करेक्ट। सो 2E cos alpha by 2, 2E cos alpha by 2। So the pitch factor is how much, the pitch factor is how much, cos alpha by 2, correct। So this is the magnitude of pitch factor। So let me tell you another important thing, pitch factor for nth harmonics, that is Kpn is equal to cos n alpha by 2। This is the pitch factor for nth harmonics। अच्छा ठीक है। So do you think that sir we are getting a pure sinusoidal waveform, then why are you talking about harmonics? So dear student, let me tell you an important concept here। क्या है, suppose this is the starter, okay, where armature conductors are there, this is your starter where armature conductors are there, okay। So near to the armature conductors क्या होगा आपका, क्या होगा आप बताओ, पोल होगा, क्या होगा पोल। So you can see here the air gap between the pole and starter is increasing order or decreasing order। So पोल का सेंटर में एयर गैप कम है, यहां तक ये पर्सन तक आपका क्या है बहुत ही कम है एयर गैप, इसके बाद क्या है एयर गैप बढ़ गया है, ठीक है, यहां पे एयर गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये चीज पता है एयर गैप एंड रिलक्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एयर गैप जहां पे ज्यादा होगा फ्लक्स क्या होगा कम होगा, अगर एयर गैप कम है फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा, राइट। सो आप एक चीज बता सकते हैं कि ये मतलब ये पर्सन में आपका एयर गैप क्या हो रहा है कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। सो इसका मीनिंग क्या है आपका, इसका
जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेवफॉर्म होगा इसी टाइप का होगा। जीरो, पाई, 2 पाई, ये है आपका ओमेगा टी, ये है आपका फ्लक्स वेवफॉर्म और फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म, फ्लक्स वेवफॉर्म और फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज कॉल्ड योर ट्रापेजॉइडल। इज इट साइनोसॉइडल? टेल मी, is it sinusoidal? Not at all, not at all. It is trapezoidal. So obviously it will contain, phi is a summation of fundamental plus harmonics. हार्मोनिक्स होगा कि नहीं? आई प्रूव्ड हियर। हार्मोनिक्स यहाँ पे होगा कि नहीं? आई प्रूव्ड हियर। सो हार्मोनिक्स होगा, लेकिन हमारे पास क्या है? एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमको यही हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? बाय आर्मेचर वाइंडिंग, बाय द कनेक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, बाय शॉर्ट पिचिंग ऑफ द कॉइल आई कैन एलिमिनेट दिस हार्मोनिक्स। Okay, I can eliminate this harmonic. So I can eliminate this harmonics. So tell me, कैसे हम एलिमिनेट करेंगे? पिच फैक्टर फॉर nth हार्मोनिक्स। अच्छा, nth हार्मोनिक्स का पिच फैक्टर है kpn. So yesterday's class I told you, now the EMF equation will be given by 4.44 phi m f turn per phase kp kd। सपोज मुझे 7th हार्मोनिक्स को जीरो करना है, तो 4.44 का कोई रोल है 7th हार्मोनिक्स को जीरो करने के लिए? नहीं है। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है हार्मोनिक्स को जीरो करने के लिए? नहीं जी, इसका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट ये 7 टाइम्स हो जाएगा। क्या होगा? ये इनफैक्ट 7 टाइम हो जाएगा। एंड टर्न पर फेज का कोई रोल है? नहीं है। लेकिन पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का है। फॉरगेट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फोकस ऑन पिच फैक्टर, क्योंकि अभी हम पिच फैक्टर में हैं। अच्छा, मुझे E7 को जीरो करना है। एलिमिनेशन मतलब क्या है आप बताओ? एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है? एलिमिनेशन मतलब जीरो करना है, राइट? एलिमिनेशन मतलब उसको जीरो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? KP7 को अगर जीरो कर देंगे देन आवर टास्क इज डन, आवर टास्क इज डन। सो KP7 को जीरो करना मीनिंग, लेट मी राइट हियर, cos n alpha by 2, n is how much? 7 alpha by 2 is 0। cos जीरो कहां पे होता है? cos जीरो कहां पे होता है? 90 डिग्री में। सो आई कैन राइट हियर cos 7 alpha by 2 is equal to cos 90, right? So I can write here 7 alpha is equal to 180 degree. Alpha is equal to 180 divided by 7. 180 divided by 7, right? So अगर शॉर्ट पिच एंगल 180 by 7 होगा तब जाके 7th हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगा। सपोज माई क्वेश्चन इज दैट सर 11th हार्मोनिक्स आप नहीं, 11th तो एक डोमिनेंट हार्मोनिक्स नहीं है, दैट इज ए हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। मुझे चाहिए एक डोमिनेंट हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना। मुझे सपोज 5th हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, देन व्हाट विल बी द स्लॉट एंगल, सॉरी व्हाट इज द शॉर्ट पिच एंगल और कॉर्डिंग एंगल अल्फा। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा, ओके। मैं गामा के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, गामा स्लॉट एंगल होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शॉर्ट पिच एंगल। सो मुझे अगर 5th हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है
सो व्हाट विल बी द शॉर्ट पिच एंगल, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, cos 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू, ये सब करके आप निकालेंगे। सो द generalized expression to eliminate nth harmonics is generalized expression to eliminate nth harmonics is cos n alpha by 2 is equal to cos 90, क्योंकि kpn को हम जीरो लेना है ना, kpn अगर जीरो होगा तो en क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरा फाइनल टारगेट क्या है, en को जीरो करना है, en को जीरो करना है, मतलब kpn को जीरो करना है। kpn is given by cos n alpha by 2, again cos n alpha by 2 is 0 when n alpha by 2 is equal to 90 degree. So tell me alpha will be how much, 92 ja 180 degree divided by n. Got the point? All of you got the point? So what is the short pitch angle to eliminate fifth harmonics? अब बताओ, substitute the formula and tell me the answer. क्या होगा, 180 divided by 5 is equal to 36. Answer would be 36 degree. So if the short pitch angle is 36 degree, then we can eliminate the dominant fifth harmonics. ठीक है, so short pitch angle अगर ज्यादा होगा then only we can eliminate dominant harmonics. ठीक है, short pitch angle ज्यादा होगा मतलब अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा। Tell me what is the expression for Kp? Kp is given by cos alpha by 2. So फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, राइट, अल्फा का वैल्यू ज्यादा है। एंड cos इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, टेल मी कोसाइन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, अल्फा अगर बढ़ता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, वही पे हम ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन cos इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, सॉरी cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यही होता है ना आपका 0, 90 to 70। तो 0 to 90 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बट साइन क्या होता है, साइन इज ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, टेल मी, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, सो अल्फा सी मुझे अगर डोमिनेंट हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा तो cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, केपी का वैल्यू कम घट जाएगा, केपी का वैल्यू अगर घट जाएगा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस, ई का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ई रिड्यूस, एक रिड्यूस्ड वैल्यू चाहिए, ज्यादा वैल्यू चाहिए,
अब बताओ ई कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ई ज्यादा होना चाहिए, बट हार्मोनिक्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, हार्मोनिक्स को भी एलिमिनेट करना है, तो एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट हमको निकालना है, ना कि ई का कंडीशन ये होना चाहिए ई का वैल्यू भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए एंड हार्मोनिक्स भी नहीं रहना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में एक इक्विलिब्रियम बनता है एंड वहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा अल्टीमेटली, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ओबियसली केपी का वैल्यू विल ओबियसली इट विल बी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये रिड्यूस्ड होगा, ठीक है? लेकिन हम लोग ज्यादा रिड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? आई कैनॉट रिड्यूस इट सब्सटेंशियली। Let's solve some numericals, right? Now let's solve some numericals on this topic. Okay. So the question is, a 3-phase 2-pole 18 slots alternator has the coil span of 6 slots. Then the coil span factor is how much? Try to solve this question. Try to solve this question. Okay. So write down, we know that coil span factor is given by cos alpha by 2. In this question, number of slots is how much? 18. Number of poles are how much? 2. Number of poles are how much? 2. Coil span is 6 slots. Coil span is, हाँ अच्छा अब बताओ यहाँ पे स्लॉट एंगल क्या होगा? इट इज 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल. सो 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल इज 9. सो ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री. 20 डिग्री हो जाएगा. एंड कॉइल स्पैन इज 6 स्लॉट, मतलब बीटा इज 6 स्लॉट. 6 स्लॉट्स का इक्विवेलेंट एंगल क्या बनता है? 6 इंटू 120, सॉरी 6 इंटू 20. So it is 120 degree. So we know that
अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री। सो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस 120 डिग्री, that is equal to 60 degree. Okay, that is equal to 60 degree. So coil span factor will be how much? AP is cos 30 degree. Cos 30 is how much? 0.866, which is 0.866. ठीक है? Now let's move to another question. A 3-phase 4-pole 60 slot alternator, if coil span is 1 to 12 number of slot, then pitch factor is how much? Bit B. Coil span is 10 number of slots, then pitch factor is how much? Winding is sorted by 5 slots, then pitch factor is how much? Coil span is 11 by 12th of pole pitch, then coil span factor is how much? ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है. So try yourself once, then we'll discuss. So if the coil span is 1 to 12 slots, okay, matlab in this question what is the total number of slot? Tell me. It is 60.
number of poles is how much? 4. So slots per pole will be how much? 15. So ये है आपका सपोज एक पर्टिकुलर पोल है, नॉर्थ पोल, सपोज इट इज नॉर्थ पोल. So coil span is 1 to 12. It is coil number 1 and it is coil number 12, right? And it is your 1 ton. It is 1 ton, complete 1 ton. Now what will be the coil span? What is coil span here? So in this case coil span is how much? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, similarly 11 to 12. तो टोटल क्या होगा? What is the coil span? 1 to 12 slots. 1 to 2 में coil span क्या होता है? सिंगल रहता है. Similarly 1 to 3 में क्या रहेगा? 3 minus 1 2. Similarly 1 to 12 में कितना रहेगा? 12 minus 1 that is 11 slot. 12 minus 11 that is 11 slots रहेंगे. So 11 slots रहेंगे. Again slot per pole is 15. So slot angle will be how much? 180 divided by slots per pole. So क्या होगा? क्या होता है? 180 by 15. It is how much? 12 degree. Correct? It is 12 degree. तो coil span क्या हो जाएगा? It will be 11 times the slot angle. 11 into 12 क्या होगा? 12 हाँ 11 हाँ सॉरी 12 132, right? It is 132. So alpha will be how much? 180 minus 132, that would be 48. So coil span for the first bit. So coil span for the first bit Kp will be cos alpha by 2 will be equal to cos alpha by 2, 48 by 2. So ये क्या हो जाएगा? cos 24 डिग्री. इसका वैल्यू आप लोग लिख लेना, ठीक है? Now come to bit B. Bit B. So coil span is 10 slots. Coil span is 10 slots. So 10 slots मतलब बीटा क्या हो जाएगा? बीटा विल बी 10 इंटू गामा. सो गामा मतलब स्लॉट एंगल क्या है? स्लॉट एंगल इज 12, सो इट विल बी 120 डिग्री. एंड शॉर्ट पिच एंगल अल्फा विल बी 180 माइनस 120 डिग्री, सो इट विल बी 60 डिग्री. सो अब बताओ केपी क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बाय 2. सो कॉस अल्फा बाय 2 मतलब कॉस 30. It will be 0.866. It will be 0.866. Bit C. Winding is short pitched by 5 slots. अच्छा, winding is short pitched by 5 slots. So alpha is how much? 5 into gamma. 5 into gamma मतलब 60. So Kp क्या हो जाएगा? Cos 30. Right? Now come to the last bit. Coil span is 11 by 12 of pole pitch. अच्छा, coil span is this much. तो आपका शॉर्ट पिच एंगल कितना हो जाएगा? 1 by 12 of pole pitch. तो पोल पिच क्या होता है? 180 डिग्री. 1 by 12 of 180 डिग्री मतलब क्या होगा? 15 ना, 15 डिग्री. सो अल्फा इज 15 डिग्री. सो पिच फैक्टर विल बी हाउ मच? cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू cos 7.5 डिग्री. हाउ मच? cos 7.5 डिग्री. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट?
ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? सो पोल पिच कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, दिस इज द स्टेप, राइट? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर 1 मार्क क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनस मशीन का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है पिच फैक्टर फाइंड करना। Okay, now let's solve another question. A three-phase alternator with pole pitch equals to 18 slots and winding is short pitched by 60 degree, then coil span will be how much? coil span क्या होगा? डोंट सी इन यहाँ पे वाइंडिंग शॉर्ट पिच्ड बाय 60 डिग्री, मतलब अल्फा इज 60। सो डोंट से कि सर बीटा यहाँ पे 120 डिग्री होगा, या बीटा विल बी 120 डिग्री, लेकिन आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स बताना है, ठीक है? वी नो अल्फा, सी शॉर्ट पिच एंगल अगर 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली कॉइल स्पान क्या होगा? कॉइल स्पान इज इक्वल टू बीटा, एंड वी नो द रिलेशन beta plus alpha is equal to 120 degree, as alpha in this case is 60 degree, so beta will be 180 minus alpha, so 180 minus 60 will be 120 degree. I agreed. But अब बताओ, this is the question they have asked in terms of slots, you have to answer. आपको यहाँ पे in terms of slots ही बताना है, ठीक है? क्या होगा? सो पोल पिच तो 120 डिग्री में कितने स्लॉट्स रहेंगे? 180 बाय 180 डिग्री इंटू 120 डिग्री, so 12 number of slots will be there. So the correct answer for this question will be 12. Okay, are you getting my point? All of you are getting my point? Now let's solve another important question, ठीक है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन के ऊपर।
the coil span of an alternator is, the coil span of an alternator is 160 degree. Then which harmonics will be absent? Then which harmonics will be absent? Tell me. So the coil span of an alternator, beta is 160 degree. अगर बीटा 160 डिग्री है, वी नो द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अल्फा दैट इज शॉर्ट पिच एंगल विल बी 180 माइनस बीटा. सो क्या हो जाएगा? जस्ट 20 डिग्री. अल्फा विल बी 20 डिग्री. दिस इज द शॉर्ट पिच एंगल. So I told you, in order to eliminate nth harmonics, alpha should be equal to 180 by n. But in this case, I want to eliminate nth harmonics, and for that harmonics, the short pitch angle has been given. So what is the short pitch angle in this case? 20 degree. अब बताओ क्या होगा आंसर? 9th. The answer would be 9th harmonics. So the answer would be 9th harmonics. Correct है? Right. So this is all about your pitch factor. This is all about your pitch factor, right? But dear students, you have to watch this video and maintain a notes, right? And you have to revise as well. So let me tell you some important thing. अगर आप simply see, आप effort दे रहे हैं, लेकिन उसको और भी effective way में आप input देना चाहिए. You are working, no doubt. Many students are working. बट आप इसको एक इफेक्टिव तरीके से इनपुट देना चाहिए. सो आप फर्स्ट बाय डिफॉल्ट आप तो वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर्स आप देख रहे हैं, राइट? नेक्स्ट नोट्स होना चाहिए. यू शुड हैव नोट्स. क्योंकि सी ऐसा नहीं है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब कुछ नया है, नहीं है, ऑब्वियसली नॉट. लेकिन कुछ चीज ऐसा होगा जो कि आप मे भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और आप फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़े होंगे, आप भूल गए होंगे, राइट? आप उसमें से थोड़ा सा कम टच है. और ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो कि थोड़ा वोलाटाइल होता है, राइट? जैसे कि मान लो नॉन लिनियरिटीज इन ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्कस किए थे, वो एक वोलाटाइल टॉपिक होता है, तो उसका नोट्स होना चाहिए. तो अगर आप 15 डेज और 30 डेज के बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए नॉन लिनियरिटीज इन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? लेक्चर्स तो फिर से नहीं देखेंगे. दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि 30 डेज के बाद तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है? बिकॉज फॉर यू आर हैविंग 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट फॉर मी दिस सब्जेक्ट इज देयर, ठीक है? तो आपके पास बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट है. सो यू शुड हैव ए नोट. सो आप अल्टीमेटली नोट से रिवाइज करना है. सो नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि सर हमारे पास ऑलरेडी गेट का नोट है. नो, आप अभी जो भी चीज पढ़ रहे हैं करंटली फ्रेशली जो भी चीज पढ़ रहे हैं एंड फ्रेशली एक नया एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मतलब शॉर्ट टाइप्स का एक नोट्स होना चाहिए. मतलब नया चीज जो भी आप देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. मेनली नाउ सी टिल नाउ बार का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसरो का नोटिफिकेशन नहीं आया है. सो यू शुड जस्ट फोकस फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? यू शुड जस्ट फोकस फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन. एंड IRMS का भी नोटिफिकेशन नहीं आया. सी व्हाट आर द अपकमिंग एग्जाम्स फॉर यू? टेल मी.
लेट मी टेल यू, दो सी ईएससी का एग्जाम कैलेंडर होता है, इसका डेट फिक्स्ड है ईएससी प्रीलिम का। सेकंड चीज है, यू आर टारगेटिंग फॉर सपोज इसरो, बीएआरसी, आईआरएमएस। बेसिकली आईआरएमएस एंड ईएससी का लिंक एक जैसा है, ठीक है। आईआरएमएस एंड ईएससी वन टाइप ऑफ एग्जाम एंड इसरो बार्क वन टाइप ऑफ एग्जाम, राइट। लेकिन इसी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ईएससी का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आईआरएमएस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सी आईआरएमएस का अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आया है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। पहले सोचा जा रहा था कि नहीं, आईआरएमएस मतलब रेलवे डिपार्टमेंट सिविल सर्विस के साथ ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस सीएससी 2021 का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है एंड वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थिंक 712 है, ठीक है, 712। यहाँ पे भी वैकेंसी घट गया है क्योंकि सिविल सर्विस के थ्रू भी रेलवे डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के लिए, ठीक है। रेलवे मैनेजमेंट के लिए सिविल सर्विस के थ्रू भी वैकेंसीज निकलता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक बड़ा ही डिपार्टमेंट है, वहां पे हमेशा ज्यादा वैकेंसीज निकलता है क्योंकि इसी साल रेलवे डिपार्टमेंट बोथ इंजीनियरिंग सर्विसेज का एंड सिविल सर्विसेज का दोनों का ही वैकेंसीज से निकल चुका है, ठीक है। इसीलिए ईएससी का नंबर ऑफ वैकेंसीज तो ऑलरेडी कम है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑलरेडी बाहर जा चुका है। सिमिलरली सिविल सर्विसेज में भी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बाहर जा चुका है, तो यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर ऑफ पोस्ट घट गया है। तो ये अभी क्या है 712, जस्ट बिकॉज इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पोस्ट नहीं है इस साल, ओके। सोचा जा रहा था कि सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोथ फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, राइट। इसका नोटिफिकेशन भी अभी नहीं है, बार्क एंड इसरो का भी नहीं है, बट ओनली नोटिफिकेशन इज ईएससी, ठीक है। ओनली नोटिफिकेशन व्हिच इज फ्रेश इज ईएससी एंड साइमल्टेनियसली यू कैन गो फॉर एनटीपीसी। तो आप नहीं दे सकते हैं एनटीपीसी क्योंकि इसका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, करेक्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, बट यू कैन गो फॉर एचपीसीएल, राइट, यू कैन गो फॉर एचपीसीएल एग्जाम। वहां पे 25 वैकेंसीज है एंड आई थिंक एचएएल हाल का वैकेंसीज भी आ चुका है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला के 4-5 ब्रांच मिला के 40 वैकेंसी आया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ओके। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पूरा फुल्ली फोकस्ड होना पड़ेगा क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है, सिलेबस अलग है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, कन्वेंशनल पेपर भी है एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम में तो इमीडिएटली आपका 2 months गैप है, ओनली 2 months गैप इज देयर, ओनली 2 months गैप। आई थिंक 10th of October में आपका मेन एग्जाम है, राइट। सो जुलाई अगस्त, सो 2.5 months का गैप है, तो 2.5 months में पहले आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वहां पे बहुत ही कम टाइम बचेगा क्योंकि मेन एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपको लिखना होता है, तो राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम नेटवर्क थ्योरी। अगर थ्योरम्स में से एक क्वेश्चन आया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वहां पे राइटिंग स्किल्स देखा जाता है, वहां पे स्टेप्स चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर मैच हो रहा है इसका मीनिंग यू विल बी गेटिंग 10 out of 10, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा एंड 3 hours plus 3 hours, 3 hours plus 3 hours, राइट।
मतलब पेपर 1 पेपर 2 इट कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स ईच एंड यू हैव टू कंप्लीट विद इन 3+3 6 आवर्स इन 1 डे। सो वही 1 डे में इतने सारी चीज लिखना है, इसीलिए आपको राइटिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप 2 मंथ्स में नहीं कर पाएंगे। सो अभी आपका ईएससी प्रीलिम के लिए टाइम बचा है। सो आप क्या कर सकते हैं, डेली सपोज नेटवर्क थ्योरी का 5 क्वेश्चन यू शुड प्रैक्टिस, 5 क्वेश्चन यू शुड प्रैक्टिस विद इन ए टाइम फ्रेम। आप प्रैक्टिस के टाइम ज्यादा टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विद इन 1.5 to 2 आवर्स यू शुड प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान दो, नॉट ओनली यू शुड फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स बट ऑल्सो theoretical question, not only on numericals but also for theoretical question you have to practice। जैसे कि आपको पूछा गया सोलर पावर प्लांट के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखो, उसका फुल मार्क्स है 5 मार्क्स, ओके। सो आपको किस टाइप का आंसर लिखना है, वेदर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे और पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। ऑब्वियसली हमेशा पैराग्राफ में अगर लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ओके, पिन पॉइंटेड आंसर लिखेंगे तो पैराग्राफ फॉर्म का मार्क फेचिंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉइंट फॉर्म का आंसर्स ज्यादा मार्क फेचिंग होता है एज कंपेयर टू पैराग्राफ फॉर्म। एंड वी इंजीनियर्स बेसिकली एक्वेंटेड विथ पॉइंट फॉर्म नॉट पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। हमको पॉइंट फॉर्म अच्छा लगता है, तो पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, कुछ चीज आपको पता नहीं होगा लेकिन आपका 50 शॉर्ट्स नोट्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेपर 1 से, ओके। पेपर 1 का 50 शॉर्ट नोट्स एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे एंड वही क्वेश्चन मेनी टाइम्स रिपीट होता है ईएससी कन्वेंशनल में। जैसे कि मटेरियल साइंस में है, मटेरियल साइंस में सपोज नैनो मटेरियल्स है, ठीक है, नैनो मटेरियल्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। सिमिलरली क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वहीं से एक शॉर्ट नोट्स आएगा, तो वही सब प्रैक्टिस करना है एंड वही चीज आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं पहले ईएससी प्रीलिम खत्म हो जाए उसके बाद रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में अगर होगा ईएससी प्रीलिम तब जाके प्रिपेयर करेंगे, ये एक और स्ट्रैटेजी है। एंड लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, आपका अभी अगर आप दूसरा काम भी तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का दूसरा कोई कुछ काम नहीं है, दोज हु आर जॉब गोइंग दैट इज सेपरेट थिंग। आपको जॉब को भी इक्वल जस्टिस देना पड़ेगा क्योंकि आप जॉब क्विट नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट। एंड अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं आपका प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ेगा, सेम में अगर 2-3 पेपर है वो भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास बहुत टाइम बचा है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बीटेक में होता है ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, वो ग्रुप एक्टिविटी होता है। 4-5 स्टूडेंट्स 4-5 मेंबर्स, ए ग्रुप ऑफ 4 to 5 मेंबर्स हैव टू परफॉर्म द प्रोजेक्ट। तो वहां पे इतना लोड नहीं होता है लाइक जैसे कि एमटेक में होता है, राइट, ठीक है। सो ये सारे चीज ध्यान देना है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुलाई 18 के बाद आप फिर से गेट प्रिपरेशन करेंगे। तो गेट अगर प्रिपरेशन करना है तो हॉलिस्टिक वे में चलिए। अगर आप कन्वेंशनल को अभी से प्रिपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल्स पार्ट को, थियोरेटिकल पार्ट को, तो ईएससी कन्वेंशनल इज इक्विवेलेंट टू गेट क्वेश्चन, ठीक है। ईएससी कन्वेंशनल इज इक्विवेलेंट टू गेट क्वेश्चन, तो आपका गेट का कंसेप्ट हो जाएगा, तो आप गेट एंड ईएससी को पैरेलली लेके चल पाएंगे, ठीक है। सो एनीवे व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट।
सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द पिच फैक्टर. अभी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का भी कुछ इफेक्ट्स आएगा किसके ऊपर, द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर. सो वी नो दैट ईएमएफ पर फेज इज गिवन बाय 4.44 phi m f टर्न पर फेज इनटू kd. ओके, इसके साथ kp भी है. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द इफेक्ट ऑफ kp ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन kd, राइट. सो I don't want to go in detail for the derivation of kd. kd कहां से आएगा, kd कहां से आएगा. So basically kd is given by EMF induced in distributed winding by EMF in concentrated winding. EMF in concentrated winding. So tell me, इसका मीनिंग यही है, ठीक है. सो KD इज, अगर हम डेरिवेशन करेंगे, इट इज गिवन बाय साइन n गामा बाय 2 बाय m साइन गामा बाय 2. सो गामा का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज योर स्लॉट एंगल. ओके, एंड व्हाट इज m? m इज नथिंग बट योर स्लॉट्स पर पोल पर फेज. यहां तक आपको पता था, राइट. स्लॉट्स पर पोल तक आपको पता था. सो स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज कॉल्ड योर m. ओके, स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज कॉल्ड योर m. सो क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन कुछ अगर डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा. ओके, सो डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Now let me tell you some important, हाँ ठीक है, okay fine. Now we'll discuss a important question. Write down. A 3-phase 50 Hz 10 pole alternator with 90 slots has a star connected winding to give a generated EMF of 11 kV at no load. The coils are short pitched by one slot.
if the flux per pole is 0.11 Weber, the number of series turns required, the number of series turns required for each phase of this alternator is how much? ठीक है, of this alternator is how much? So read the question carefully. First of all, read the question carefully and tell me, a 3-phase 50 Hz 10 pole alternator, so number of pole is 10, with number of slots is how much? 90, has a star connected winding to give a generated EMF of, ये क्या है आपका line voltage which is how much? 11 kV at no load. The coils are short pitched by 1 slot, so alpha is how much? 1 slot. इसका इक्विवेलेंट एंगल आपको लिखना है, and the flux per pole is 0.11 Weber. The number of series turn required for each phase, टर्न पर फेज आपको लिखना है, राइट? टर्न पर फेज आपको लिखना है. अब दिस alternator you have to find the turn per phase. So try yourself within 1 minute. After that I will discuss this question. After that I will be discussing this question. ठीक है. सो टेल मी व्हाट इज द स्लॉट्स पर पोल. स्लॉट्स पर पोल क्या होगा? 90 डिवाइडेड बाय 10 which is 9. So tell me what will be the slot angle. It will be 180 degree divided by slot per pole. So क्या होगा? It will ये क्या होगा? 180 by 9. So it will be 20 degree. So slot angle is 20 degree. So what will be the short pitch angle? It will be again 20 degree. तो आप बताओ pitch factor क्या होगा? It will be cos alpha by 2. So it will be cos 10 degree. Distribution factor क्या होगा? 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. ठीक है. If the flux per pole, no, just a minute, we have to consider it, right? We have to consider it. So tell me what will be m का वैल्यू क्या होगा? स्लॉट पर पोल is 9. स्लॉट पर पोल पर फेज will be how much? ये क्या है? 3 फेज. So 9 by 3 will be 3. So KD is how much? KD is given by sin m gamma by 2 divided by m sin gamma by 2. इसका वैल्यू आप निकालो.
इसका वैल्यू आप निकालो, ठीक है। क्या होगा, m का वैल्यू क्या है 3 है, गामा का वैल्यू क्या है 20 है, 23 जा 60 बाय 2 साइन 30। m का वैल्यू क्या है स्लॉट पर पोल पर फेस 3 साइन गामा बाय 2 साइन 10, इसका वैल्यू आपको निकालना है, राइट। नाउ EMF line voltage is how much 11 kV and it is a which type of connection, tell me, it's a star connection, so phase voltage will be how much 11 by root 3 kV। इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ, इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ। 6350.8 वोल्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है 6350.8। we know that E per phase is equal to 4.44 m into टर्न पर फेज। इसके बाद क्या होता है वाइंडिंग फैक्टर kp so you know the value of kp फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम फ्लक्स आपको पता है, E पर फेज पता है, so you need to find the value of turn per phase। So turn per phase will be how much? E divided by 4.44 into 5m into frequency into kW। इसका आंसर आपको बताना है। So you have to tell me the answer of turn per phase। ये क्या होगा अल्टीमेटली, टर्न पर फेज क्या होगा, you have to tell me, calculate and tell me, कैलकुलेट एंड टेल मी टर्न पर फेज क्या होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन। सो ये क्लास वाइंडिंग फैक्टर के ऊपर था एंड ये फेवरेट टॉपिक है, ये कोई भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई वी फोकस सो मच। एंड उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पर जनरेटर हम डिस्कस करेंगे एंड मोटर के टाइम में डिस्कस करेंगे। एंड आर्मेचर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ, नहीं जस्ट मिनट, जब हम पावर फ्लो इक्वेशन डिस्कस करेंगे तब फिर से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वही डिस्कस करेंगे। ओके, सेपरेटली हम करेंगे, लेकिन उसका लिंक करेंगे कहां से, जब पावर फ्लो इक्वेशन मिलेगा, मतलब रियल पावर रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन मिलने के बाद। एंड बेसिकली रिएक्टिव पावर का लिंक है किसके साथ, रिएक्टिव पावर का लिंक किसके साथ है, पावर फैक्टर के साथ है, राइट। सो वहां पे हम बहुत अच्छा लिंक कर पाएंगे, राइट। सो टेल मी, ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। सो द आंसर वुड बी हाउ मच, 275.5। इसका कोई यूनिट होता है, नो, 275.5। सो अप्रोक्सीमेटली 275, और अगर दिया गया है ऑप्शन में 276 ही लेना आपको, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपका दिया गया होगा वही को चूज करना है, राइट। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 6-pole alternator with 36 slots having two-phase distributed winding, having two-phase distributed winding
each coil is short pieced by one slot. Winding factor is given by how much? Winding factor is given by how much? So in this question, number of pole is 6, number of slots are 36, winding factor is given by kW, which is kp into kd. So kp क्या होता है? cos alpha by 2, kd क्या होता है? sin m gamma by 2 divided by m sin gamma by 2. So slots per pole is how much? It is 36 by 6, which is 6. Gamma will be how much? 180 divided by slots per pole. So ये क्या हो जाएगा? 30. शॉर्ट पीस्ड बाय वन स्लॉट, राइट? शॉर्ट पीस्ड बाय वन स्लॉट. तो अल्फा क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? अच्छा, स्लॉट एंगल क्या है? 30 डिग्री. तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 30, राइट? सो यू कैन राइट हियर cos 30 by 2 and sin m gamma by 2. So m क्या होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, m का मीनिंग क्या है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज. स्लॉट्स पर पोल 6 है, फेज है 2, so it will be 3. So sin 3 into gamma is 30 divided by 2, right? Slots per pole is how much? 3. नहीं. ओके, करेक्ट है. डोंट वरी. ठीक है. डिवाइडेड बाय m का वैल्यू 3 है, साइन गामा बाय 2 इज अगेन 30 by 2. So cos 15, 30 by 2 15, sin 30 by 2 15. So cos by sin क्या होगा? cot 15 डिग्री by 3 into sin 90 by 2 मतलब sin 1 by root 2. So इसका आंसर क्या होगा? cot 15 divided by 3 root 2. cot 15 divided by 3 root 2. Okay? cot 15 divided by 3 root 2. So the answer for this question will be cot 15 divided by 3 root 2. इसका जरूर ऑप्शन होगा, ठीक है? इसका जरूर ऑप्शन होगा. So in this class we have discussed regarding the pitch factor and distribution factor, and we have also discussed so many number of numericals, and in the next class we will be discussing regarding the R voltage regulation. उसके बाद हम आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट विल जंप टू द पावर फ्लो इक्वेशन. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. विश यू कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग. ओके, एंड गॉड ब्लेस यू.